I was about to left biology in like 2 months because of physics, because I couldn't handle it. मतलब फिजिक्स इतना टफ लगा था, वेक्टर्स जैसे स्टार्ट होते हैं ना 11th में, आप पहली बार आते हैं सारी चीजें पढ़ते हो, आई वाज लाइक आई कैन नॉट हैंडल इट, आई एम लीविंग इट। तो मैं नहीं कर रहा पीसीबी, मैं कुछ और ले लूंगा, मैं आर्ट्स ले लूंगा, मैं कॉमर्स ले लूंगा। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग माय लवली मैस्कॉट्स। आज मैं अपने एक बहुत स्पेशल, बहुत अमेजिंग बायोटोनियन को ढूंढ के लाई हूं जिनका नाम है प्रथम, हु स्कोर्ड अ वूपिंग 666 इन नीट 2023। बट कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी इतनी अमेजिंग है दैट प्रथम ने की 2 सिली मिस्टेक्स। यस, यू गॉट मी राइट, सिर्फ 2 सिली मिस्टेक्स, और उसकी वजह से प्रथम के 5 नंबर कट गए फिजिक्स में और 5 नंबर कट गए केमिस्ट्री में, वरना इनके 180 बाय 180 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ रहे थे। आई रियली कांट बिलीव इट, आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स। दिस इज लाइक वाओ, एंड ही हैज अ डीपली इंस्पिरेशनल स्टोरी जो हमारे साथ ये शेयर करेंगे। सो ओवर टू यू प्रथम। पहले तो आप इस सिली मिस्टेक के बारे में हमें बताइए, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, और कैसे आपकी ये जर्नी रही 1 साल की। सो यस, ओवर टू यू प्रथम। Yeah, sure. So usually बच्चों का क्या होता है कि biology is the strong part while you give NEET, right? It's completely opposite in my case. My weakest part is biology. Weakest. I cannot remember a thing. Not a thing. It's really, really tough for me to remember biology. Like any line. याद करना पड़ेगा अभी 5 सालों में। I know, right? That is the contrast of it. Yeah. But the more interesting part for me was physics and chemistry always. Like, and this year was like very different for me when it comes to physics, because this was my 3rd attempt actually. And last 2 attempts, my physics marks were like 90 and then 105, like really low. I didn't know a thing about physics. I hated physics since last 2 years. But this year was quite different. Only one thing I did, and it just boosted up. I was like on the top of the sky, even while I was preparing for physics, like giving mock tests, anything. I was like, ये year तो 180 आएगा ही, अब कोई नहीं रोक सकता। ऐसा तो 100% I was sure. वो क्या था? This was because I followed one thing only, and that was I only and only read line by line NCERT of physics. Really? Only that. Physics में भी NCERT? Only NCERT, not any else, not any other reference book, no module, no class notes, nothing. Only NCERT reading of physics, word by word, line by line, each and every question solved. Wow. And आपके nothing 180 else. आते अगर आप वो सिली मिस्टेक ना करते। 180 on 180. Yeah, yeah. Wow. Exactly. That one silly mistake was the question of electromagnetic wave of X-rays वाला question जो आया था, जिसमें 1/√V was not the answer. I just misunderstood the question on the spot. Otherwise, I could have solved it easily. Yeah. Super amazing. What about chemistry? Did you follow the same thing in chemistry also? Exactly the same thing for chemistry. Exactly the same thing. पूरा Only chemistry, NCERT. organic, inorganic, physical, सब कुछ आपने सिर्फ NCERT से किया। Sirf NCERT, not a single word out of NCERT, not a single. And the question which went wrong, ma'am, the question was that question in which the answer was magnesium in our body, the role, and that too relates to biology, and my biology is not really good. So ultimately, it went wrong. पर प्रथम एक चीज बताओ, Yeah. यार आपका ये 3rd अटेम्प्ट था, तो एक वैसे ही टेंशन होती है कि Yes. यार करना ही करना है, प्रेशर होता है, ऊपर से मतलब बायो में तो आई नो लोग टोटली ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एनसीईआरटी को, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ट्रस्ट किया। वर यू अफ्रेड? डिड यू टेक इट लाइक यार ये तो भाई अगर हो गया तो मेरे तो लॉटरी लग जाएगी, पर ना हुआ तो बैंड बज जाएगा। सो वो क्या था, वो कैसे किया आपने? लास्ट 2 इयर्स से ये तो सब बोलते थे कि एनसीईआरटी रीड करो, इट्स गोना मेक एवरीथिंग हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बट हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि क्योंकि वो साथ वाला स्टूडेंट कर रहा है एक एक्स्ट्रा बुक या एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो हमें भी कर लेना चाहिए वरना मेरा रह जाएगा। करेक्ट। बट दिस टाइम आई डोंट नो, आई वाज जस्ट प्रीटी श्योर अब सारा कुछ कर लिया है, एक्स्ट्रा बुक्स कर ली, मॉड्यूल्स कर लिए, सब हो गया, लेट्स ट्राई एनसीईआरटी, व्हाई नॉट। सो आई थॉट कि एनसीईआरटी वुड बी तब क्या बीती जब आपको लगा यार टक 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 सब हो रहा है, देन वो बोलेगा यस यस यस, ऐसा हो रहा था एग्जाम में? यस
Not really. When I started the paper, every student starts the paper with biology. So did I this year, like every time I did. But biology में जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते गया एंड द असर्शन रीजन क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं सारे छोड़ता गया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस बिकॉज मेरी बायोलॉजी स्टेटमेंट याद रखनी बहुत बुरा है. तो मैं धीरे धीरे करके छोड़ता गया एंड व्हेन आई केम टू केमिस्ट्री आफ्टर द बायोलॉजी आई डोंट नो मतलब सबका ओपिनियन है इस बार का कि केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी था टफ था बट ऑनेस्टली if I compare to last 3 years, this हलवा फॉर यू कि यार बस जुप करके पूरा पेपर हो गया. seriously, it was easiest. Like मुझे नहीं लगा last 2 years के मुकाबले ये टफ था personally. सबका ओपिनियन हो सकता है मतलब सबने जैसे भी पढ़ा है बट आई डिड नॉट फाइंड. और फिजिक्स तो आई वाज लाइक प्रीटी श्योर कैसा भी आए आई एम गोना स्कोर 180. वाओ, दिस इज लाइक अ तलिस्मा. मतलब लिटरली आपने बच्चों के लिए ना यार, मतलब अगर बच्चों ने फॉलो कर लिया, मैं वीडियो बनाऊंगी, बच्चे मतलब लिटरली पागल हो जाएंगे. नाउ टेल मी समथिंग एल्स अबाउट योर जर्नी प्रथम. जर्नी ओवरऑल कैसी थी? 3 जॉब नॉट इजी. तो डिड यू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म घर पे? हाउ डिड यू, मतलब वो सेल्फ बिलीफ आपने कैसे रखा? 3 साल आसान नहीं होते. इट्स नियरली लाइक 900 ऑड डेज, 1000 ऑड डेज. तो Yeah. कभी तो वो लो फील हुआ होगा, Exactly. कभी तो लगा होगा छोड़ दो कुछ और कर लेते हैं. हाउ डिड यू कंटिन्यू टू डू इट? The criticism part, man, that was never there from anyone, at least from around me, my peers, my parents, never there. The criticism was never there. They were always supportive. Okay. But if I talk Is about it the journey since 11, इज इट यूनिक फॉर यू, या आपने लोगों को देखा ही है कि वो सपोर्टिव होते हैं? आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के, फैमिली फ्रेंड्स पेरेंट्स, देखो मेरे को तो बहुत बच्चे मैसेज करते हैं मैम पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते. तो डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, या कुछ यूनिक है कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, या आपने देखा नहीं सबके पेरेंट्स सपोर्टिव ही होते हैं यार जनरली? like my friends and everything, I have never seen practically some parent around me कि ऐसा किसी ने करा. All my friends' parents are like, सब criticizing वाला कोई part किसी का नहीं है मेरे around I guess. So I've not felt it. I cannot talk about it like that. Anyone's parents, like. Correct. So if I talk about like मेरा 11-12 से journey, it is the most non-ideal journey of a student who is preparing for Non-ideal. most non-ideal. Yeah, correct. Because you will be shocked कि when I entered 11th, I did not know there was an exam called NEET. अच्छा. I- पता ही नहीं था. I'm not joking. I'm serious. I did not know NEET existed. I have to give NEET to get into MBBS. I was like, PCB ले लिए, let's हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा. So, and I was about to left biology in like 2 months because of physics, because I couldn't handle it. मतलब बिकॉज़ But, ऑफ फिजिक्स में मुझे समझ apparent- नहीं समझाना, मतलब मतलब फिजिक्स इतना टफ लगा था. वेक्टर्स जैसे स्टार्ट होते हैं ना 11th में, आप पहली बार आते हैं सारी चीजें पढ़ते हो. आई वाज लाइक आई कैन नॉट हैंडल इट, आई एम लीविंग इट. तो मैं नहीं कर रहा पीसीबी, मैं कुछ और ले लूंगा, मैं आर्ट्स ले लूंगा, मैं कॉमर्स ले लूंगा. आई वाज लाइक प्रीटी श्योर इन माय माइंड. एंड बट फ्रॉम there was देयर one टू teacher- 175. Yeah. मतलब ये तो टॉपर टाइप Yes, है ma'am. यार. वाओ. अच्छा, हाँ, देन फिर कैसे नहीं छोड़ा? then there was a teacher in my school. He was प्लीज टेक हिज नेम. he was pretty like his name is Yogesh Amula. He is one of the best teachers I have seen in physics. Big clap for Yogesh sir. One of- Shout out to Yogesh sir. Yes. Okay. Yes. अच्छा. Yeah. So I joined his personal coaching in my hometown only, and अच्छा. for the first time I understood physics, and for the first मतलब मुझे लग नहीं रहा था, मैं तो लगा फेल हो जाऊंगा. But when that unit test and term 1 examinations come in 11, Correct. I was one of the top 5 rankers in my class because of him, I guess. मतलब Wow. physics के लिए. नहीं तो एक I- टीचर होता है जो आपकी लाइफ बदल देता है ना. That's so beautiful. That's so amazing. Exactly. You tell him about your NEET result. मिले आप जाकर उनसे, आपके रिजल्ट के बाद बात हुई आप? Not really. I haven't been in contact because I don't think he's in town or something, Okay. and his change is that. Okay. And that is not it. Still, मतलब 11th half हो गया था. Then I came to know there's an exam called NEET because one of the students of my class used to solve some DPP papers. अच्छा. That daily practice papers used to Correct. come, right? I wasn't really like होएगा देखा जाएगा, मैं अभी अपने बोर्ड्स पे करता हूँ, मुझे कर लेंगे अगर बात की बात है देखी जाएगी. Correct. एंड कोचिंग में भी कोचिंग में भी जब वो एक बहुत टफ क्वेश्चन करा देते हैं जेई मेंस का या कोई कि Correct. बच्चों सॉल्व करके दिखाओ,
आज लाइक ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं सिर्फ बोर्ड्स की करता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं सिर्फ अपना ही करता है। दैट वाज बट नॉट माय दैट्स कप ऑफ टी। आल्सो सो नाइस। आप इतने मतलब आप इतने हेडस्ट्रॉन्ग थे कि यार ठीक है मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, बढ़िया है। Exactly. So this is the most non-ideal thing because every student starts preparing from 11th और पहले से NEET के लिए. भागना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Exactly. But honestly थोड़ा तो है कि अगर पर फिर इतना नीट का कीड़ा ideal जागा कहाँ preparation. प्रथम? कब वो जागा कि यार अब तो नीट करना है, फोड़ना है, 12th के बाद? Exactly. 12th के exactly बाद मुझे पूरी 12th भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि नीट देना है या कुछ भी करना है. I never thought. पर इतना तो I पता was चल not गया a होगा ना 12th competitive में कि guy. भाई नीट नहीं दूंगा तो डॉक्टर नहीं बनूंगा। ये तो हाँ इतना तो पता था, बट आई वाज लाइक प्रिपरेशन कर लेंगे, सब एक साल में करते हैं, मैं भी थोड़ा अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ, आई विल मैनेज इट समहाउ. वाओ, बट दैट्स गुड देखते हैं. कॉन्फिडेंस है। आप प्रथम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। या अच्छा, तो 12th का बोर्ड वोर्ड बट दिया, आई फिर क्वाइट नीट की रिग्रेट. तैयारी शुरू की? आई क्वाइट रिग्रेट दैट, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी देख लेता, एनसीईआरटी भी मैं अच्छे से पढ़ लेता, तो मैंने एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ी थी 11th की. एंड यू नो आई टेल यू वन शॉकिंग थिंग. यू नो 9 to 10 जब हम जाते हैं या 10 to 11 जाते हैं तो अपनी ओल्ड बुक्स किसी को दे देते हैं, या मतलब. करेक्ट, तो दे मैंने देते हैं, अपनी आस-पास 11th बाँट की देते हैं, दे बायोलॉजी देते हैं, सही बोल रहे हो, यस। मैंने 11th की बायो की बुक अपने फ्रेंड की किसी फ्रेंड को दे दी. कोई किस नहीं देता, राइट? मैं मान नहीं सकती, मैं सीरियसली आई डिड गिव. फिर दोबारा मैंने खरीदी या वापस बायो की माँगी बुक दे उससे? दिया. नहीं मैंने नहीं मांगी, फिर मैंने नई खरीदी 12th के बाद, क्योंकि मुझे 12th तक तो वैसे रियलाइजेशन नहीं था कि पढ़ना है. ओह तो लॉर्ड! मैंने मेरी बट आइडियल रियली प्रथम ये कहानी प्रिपरेशन मैंने किसी से अप्रैल नहीं सुनी है। 2020 से शुरू हुई थी मेरे 12th के बाद. मैंने 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते-पढ़ाते, मैंने ये कहानी किसी की नहीं सुनी है कि मैंने 11th की बुक, दिस इज़ सो नॉन आइडियल। बट सी, मतलब इवन देन यू आर अ डॉक्टर, मतलब देयर इज़ नो वन सीरियसली. वे, कोई किसी भी तरीके से डॉक्टर बन सकता है। एग्जैक्टली. और उसके बाद भी आई वाज लाइक आई जॉइंड अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन. तो उस टाइम कोविड बिल्कुल आया ही था, सो वी जॉइंड ऑफलाइन क्लासेस लाइक मी एंड माय फ्रेंड. एंड बिकॉज क्योंकि पॉसिबल नहीं था तो हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे. एंड दैट टाइम जब ऑनलाइन प्रिपरेशन उस टाइम पे, क्योंकि कोविड नया नया स्टार्ट हुआ था, तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने मॉड्यूल्स यू नो फोर्स करते हैं कि करो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, राइट? तो बायो में इतना ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाना, हमने भी पढ़ा, हमें तो पता नहीं था कैसे पढ़ना है, क्योंकि पहली बार नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? तो इतना सारा वो पढ़ा वगैरह पढ़ पढ़ के उस टाइम मैम मेरे मार्क्स पता है मॉक टेस्ट में कितने आते थे? 230, 235, लाइक 290, लाइक ये पूरा 2020 मेरा यही मार्क्स था मॉक टेस्ट. तो आपने देखो 2 टू 200 समथिंग से 666 की छलांग 1.5-2 साल में लगा ली। इट्स अ बिग एंड अचीवमेंट, यस। या हाँ, दैट्स नॉट इट. फिर जब ऑफलाइन कोचिंग चालू हुई, लाइक 2020 के वन के स्टार्टिंग में वैक्सीन जब आ गया था, सो वी वेंट टू ऑफलाइन कोचिंग. एंड फिर सेकेंड वेव भी बहुत जल्दी आ गया था उसके बाद, तो करेक्ट, वी हैव टू मतलब घर वापस जाना पड़ा था हमें. करेक्ट। तो जब सेकेंड वेव आया और मैं घर वापस आया था, तो ऑल माई फैमिली कॉट कोविड फॉर अ वीक एटलीस्ट. या एंड दिस मैंने 2020 का नीट भी अटेम्प्ट नहीं करा था. मैंने फॉर्म मतलब आई डिडंट अटेम्प्ट, तो मेरा अच्छा, पहला अटेम्प्ट 2021 में था. अच्छा, 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 समझ गई, समझ गई। जी. सो फिर जो 2021 के अप्रैल में मेरी प्रिपरेशन रुक गई, और वो रुकी रही जुलाई तक. मैंने कुछ नहीं पढ़ा जुलाई तक, लाइक नो आई डिडंट पिक अप अ बुक, बस घर नॉट वाले सॉल्व बीमार अ थे। टेस्ट, नथिंग. हाँ, बिकॉज सम पोस्ट कोविड थिंग, लाइक माय बॉडी वाजंट अलाउइंग, या मेरा मन नहीं कर रहा था ऐसे कुछ, तो मैंने ना सीरियसली लिया ना कुछ करा. देन मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड द एग्जाम वाज पोस्टपोन टू सितंबर इफ आई रिमेम्बर. करेक्ट, करेक्ट, 13 या सितंबर को एग्ज़ाम था, यस। एंड एग्जाम देने से पहले सबको पता होता है कि यू नो यू हैव एन आइडिया कि होगा या नहीं होगा, एक थोड़ा सा तो पता ही रहता है कि यू हैव दैट करेक्ट, प्रिपरेशन. आई वाज प्रीटी श्योर नहीं होगा. करेक्ट, एंड मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरे मार्क्स आज तक मॉक टेस्ट में 300 तक भी नहीं आए थे, या करेक्ट, 320 50 तक आते थे. करेक्ट। एंड मैंने कहा अभी तक जितना लॉजिक मैंने आज तक जो भी समझा है सब लगा के आ जाएंगे, नीट का इजी होता होगा इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट से. एंड आई डिड दैट, एंड वो फर्स्ट स्कोर वाज 491 नीट 2021. आई वाज आल्सो शॉक्ड सीरियसली. वाह! या वाह! वाह! अच्छा, फिर? देन 2021 के नीट के बाद आई टुक अ ब्रेक ऑफ अ मंथ, शेमलेसली. वैसे भी कुछ नहीं पड़ा था, अब क्या कर लेंगे, थोड़े दिन बाद स्टार्ट कर देते प्रिपरेशन. एंड
फिर 2022 के लिए आई डिसाइडेड कि अभी मैंने इंस्टीट्यूट से बहुत पढ़ लिया है. आई हैव मॉड्यूल्स, आई हैव माई रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इवन यूट्यूब के लेक्चर्स हैं. मैंने आपके लेक्चर्स भी बहुत देखे बीच बीच में. आई यूज टू फॉलो योर लेक्चर्स अ लॉट इन बायोलॉजी. एंड मैंने फिर 2022 के लिए डिसाइड करा कि एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स आपके शहर में, ताकि आप जाके टेस्ट दे और आप अपना स्कोर एनालाइज कर लो. So I joined that and I stick to self study only. मेरे पास जो नोट्स बनवाए थे मुझे क्लास में या मुझे जो मॉड्यूल से पढ़ाया था मैंने वो पढ़ा. बट दिस टाइम ऑल्सो द थिंग वाज कि मुझे कौन सा क्या पढ़ना है मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता था, क्योंकि मैं उनके नोट्स भी पढ़ता था, मैं मॉड्यूल्स भी पढ़ता था बायो के, बहुत अच्छा गाइड जो कि जरूरत बिल्कुल नहीं. ठीक है, ठीक है. मतलब बायो की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ने की अगर आपके पास किसी भी सर्टेन इंस्टीट्यूट्स के हैं. आई डोंट थिंक की जरूरत है. तो फिर 2022 का नीट हुआ. दिस टाइम ऐसा कोई ब्रेक नहीं आया मेरी प्रिपरेशन में. बट और मेरे स्कोर भी डिसेंटली थोड़ा सा बढ़ा था. लाइक मैं मॉक टेस्ट में 550 तक जाने लगा था इस बार. आई थॉट कि हो जाएगा, शायद हो जाए, मतलब नॉट कंप्लीटली श्योर. ओवरऑल रिजल्ट और कितना आया फिर आपका? 510 out of and I did 9 silly mistakes and 2 questions I filled wrong in the OMR. So I could have got like 565, 570 in the, उस वाले mock test. Then this time I was like pretty sure सब पढ़ लिया. अब एक ही चीज बचती है, वो है एनसीईआरटी, जिससे मैंने छुआ ही नहीं है. मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम 7 months पहले देखी है. मैंने आज तक खोल के नहीं देखी. 12th के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने फर्स्ट टाइम नवंबर 2022 में छुई है. और मैंने लाइन बाय लाइन वर्ड बाय रीड एक एक बार पढ़ा हर चैप्टर, और उस एक एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीड करके मैंने एक्सट्रैक्ट करे खुद ही नोट्स उसमें से. एंड आई वुड, अगर मेरे से कोई सजेशन मांगे कि फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए हाउ कैन यू स्कोर फुल, जस्ट रीड एनसीईआरटी एंड मेक सेल्फ नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी. दैट इज द की पर्सनली फॉर मी एट लीस्ट. दैट इज you don't have to follow anything. And even बच्चे कहते हैं कि कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करो इट इज रियली गुड. दैट इज नॉट रॉन्ग, ऐसा नहीं है. लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कन्फाइंड रहो. यू शुड नो कि आपको कौन सी बुक पूरी करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. ऐसा नहीं आपने एक बुक उठाई, सामने वाले ने कोई और बुक उठाई, आप उसे देख के दूसरी भी साथ साथ उठा रहे. तो कि 2-2 बुक्स बच्चे 3-3 4-4 बुक्स क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं. आई मे टेक नेम लाइक एच सी वर्मा, डी सी पांडे. बुरी बुक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन बाय देम. बट you should know कि आपको वो कौन सी एक या 2 बुक्स करनी है. So that helped a lot. Wow. In my case at least. But that's such, कोई नहीं कहता, कोई एडवाइस नहीं देता. मतलब सच्ची अगर बच्चा, मैं कहती हूँ पैसे भी बचाना है, घर बैठो एनसीईआरटी पढ़ो, समझो, लिखो, that is it. Exactly. I don't think एनसीईआरटी के अलावा एक भी एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ने से you can get ज्यादा मार्क्स. मतलब ऐसा नहीं लाते बच्चे, बिना एनसीईआरटी पढ़ के भी करते हैं. बिकॉज कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है नीट क्रैक करने का. इट इज सब्जेक्टिव टू स्टूडेंट. बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू दैट, आई थिंक, एंड मोस्ट अफोर्डेबल वे. Most affordable way. Wow, this exactly. is so amazing, Pratham. Yes. Yeah. And one thing extra, that I followed a few books like NCERT at Your Fingertips by MTG. You know that book, right? Correct. I followed your book of 360 out of 316 biology. Correct. That you released, I guess, last year. Correct. And I have to say something about that book that you wrote, because मेरे दोस्तों और मैंने सबने खरीदी थी वो बुक. और हम सबने स्टार्ट करा सॉल्व करना. एंड ऑनेस्टली इफ आई से कि ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन सारे बिल्कुल प्रिसाइजली एनसीईआरटी से, कुछ चीजें जाती हैं उसमें भी एनसीईआरटी के बाद. तो मेरे दोस्त कहते थे कि नहीं, ये एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है, हम ये सॉल्व नहीं करेंगे. बट मेरे लिए आई गेस वो ये था कि इफ आई नो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है, देन आई नो कि एनसीईआरटी में क्या है. एंड दैट इज अ प्रैक्टिस व्हाइल सॉल्विंग, कि you know कि एनसीईआरटी में क्या है और एनसीईआरटी में नहीं है. एंड दैट इज अ प्रैक्टिस. एंड लाइक 90% क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी फ्रॉम योर बुक, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट really. And MTG books personally I like. ऐसा नहीं बाकी बुक्स नहीं पढ़ सकते, but I personally like. हाँ, but this is so amazing, प्रथम. मतलब मैं तो लिख रही हूँ यार, बच्चों को मैं ये बोलूंगी प्रथम की वीडियो में ये देखना वो देखना. This is so amazing. बहुत मतलब बहुत फायदा होने वाला है. थैंक यू सो मच प्रथम. हम आपको बुलाते रहेंगे. एक काम और करते हैं, मैं आपको वैसे भी बुलाती हूँ, आपका एक लाइव मेंटरशिप सेशन करवाती हूँ बच्चों के लिए. Within the next one day, it will be so nice. मतलब just whatever you've told me, हम तो वीडियो डालेंगे.
but otherwise also it'll be so nice to have you. Thank you Thank so you. much. Thanks, Pratham. Thank you.